السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ رکن کونسل 3 مار ملنہ کے دفتر پر جاگرتی کارکنوں کا حملہ، کویتا کو کونسل رکنیت سے برخاست کرنے کا کیا مطالبہ۔ خواتین کی توہین، کویتا نے کونسل کے صدر نشین سے کی ملاقات، 3 مار ملنہ کے الفاظ قابل اعتراض، رکنیت سے فوراً معطل کرنے کا کیا مطالبہ، DGP سے بھی شکایت۔ مودی کی جگہ راہل گاندھی ہوتے تو 48 گھنٹوں میں تحفظات حاصل کر لیتے۔ تحفظات کے معاملے میں اپوزیشن کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، BC لیڈرز کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کا آرڈیننس، جریدہ غیر معمولی میں اشاعت، تعلیم و روزگار پر ہوگا اطلاق۔ اور غیر قانونی طور سے دویہ کے فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 2 افراد گرفتار، تقریباً 5 لاکھ روپے کے انجیکشنز اور دوسری اشیاء ضبط، ٹاسک فورس ایسٹ زون کی کارروائی۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔
उपल के मेडिपल्ली में रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना के क्यू न्यूज चैनल के दफ्तर पर जागृति की सदर के कविता के खिलाफ गैर अखलाकी लफाज इस्तेमाल करने पर जागृति के कारकुनों ने हमला करते हुए दफ्तर में तोड़फोड़ करके 3 मार मल्लन्ना पर हमले की कोशिश की। इस वक्त 3 मार मल्लन्ना के गनमैन ने 5 राउंड हवाई फायरिंग की। कविता के बीसी तहरीक के खिलाफ मल्लन्ना ने गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर जागृति कारकुनों ने दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसको रोकने के लिए 3 मार मल्लन्ना के गनमैन ने 5 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। 3 मार मल्लन्ना कौंसिल में कांग्रेस के रुकन हैं, ताहम पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम पर उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। खवातीन की तंजीम जागृति की सदर के कविता कौंसिल की रुकन और साबिक वजीर आला व सदर TRS चंद्रशेखर राव की दख्तर हैं। रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना ने उनके ऑफिस पर जागृति के हमले पर शदीद बरहमी जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कविता ने उन पर और उनके अरकान खानदान पर जानलेवा हमला किया है। इस तरह की हरकतों से बीसी तहरीक नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि इतवार सुबह 11:30 बजे के वक्त 30 अफराद ने हमला किया। हमारे गनमैन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अंदर दाखिल हो गए। कविता के हामियों के हमले में उनके हाथ पर जख्म आए और उनके गनमैन से गन छीनकर गोली चलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले से बीसी तहरीक को रोकने की कोशिश करेंगे तो इसमें मजीद शिद्दत इख्तियार की जाएगी। इस तरह के हमलों से खौफजदा नहीं होंगे। आइंदा 3 साल मैं कविता को सियासत में ज़मींदोज़ करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि अपने साथी रुकन कौंसिल पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाने पर उनकी रुकनियत को बर्खास्त किया जाए। గతంలో కూడా కేటీ రామారావు అనుచరులు కూడా గతంలో అనేక సార్లు దాడులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించినారు. దాదాపుగా 60-70 సార్లు నా మీద కేసులు పెడితే ఏ ఒక్క రోజు కూడా 3 మార్ మల్లన్న గాని మా ఆఫీస్ సిబ్బంది గాని ఎవరి పైన ఒక చేయి వేసిన పాపాన పోలేదు. మేమంత సామరస్యంతో ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళ కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఈ రకమైనటువంటి హత్యా ప్రయత్నాలకు కూడా స్కెచ్లు వేస్తారన్న విషయం ఇయాలనే అర్థమైతా ఉంది. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీలంతా ఎక్కడికక్కడ కల్వకుంట్ల కవిత దిష్టి బొమ్మలు నలగబెడతా ఉన్నారు. బీసీలను అనగదొక్కాలని చూస్తున్నటువంటి ఆమె పైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము కూడా ఖచ్చితంగా కార్యాచరణ చేస్తాం. ఈ దాడులతోటో ఈ బెదిరింపులతోనో ఈ హత్యాయత్నాలతోటో బీసీ ఉద్యమం ఆగిపోతుందని మీరు భ్రమపడితే నేను చెప్తా ఉన్నా, మీరు రాసి పెట్టుకోరి. రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో మిమ్మల్ని రాజకీయంగా పాతాళానికి తొక్కే బాధ్యత మాది. బీసీలము అనగారిన వర్గాలము ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడానికి మా ప్రయత్నంలో ఇసుమంతా కూడా తగ్గదు. మరింత రెట్టించిన ఉత్సాహంతోనే ముందుకు పోతాం తప్ప ఈ దాడులకు 3 మార్ మల్లన్న భయపడు. ఇగో నా పైన దాంతో కొట్టడం జరిగింది. ఈ కొట్టినటువంటి నేను అడ్డుకోవడంతో जागृति सदर व BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने कौंसिल के सदर नशीन से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि 3 मार मल्लन्ना ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो काबिल एतराज़ हैं, इसलिए 3 मार मल्लन्ना को कौंसिल की रुकनीत से मुअत्तल करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन को खुसूसी इज्जत दी जाती है। बोनाल में बोनम उठाने वाली ख़वातीन को देवी मानते हैं। अभी रियासत में ख़वातीन सियासत में आ रही हैं, अवामी मसाइल पर बात कर रही हैं।
जिम्मेदार ओहदे पर रहने वाले फर्द के गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर आपसे रुजू हुए हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीसी के मसाइल पर जागृति की तरफ से जिदोजहद करेंगे। ऐसे वक्त मल्लन्ना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा है। उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसी बात क्यों की मालूम नहीं। तेलंगाना की आवाम गलत अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन हालात खराब हो गए। उन्होंने कहा कि फौरन 3 मार मल्लन्ना को गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि मल्लन्ना सागर के अल्फाज पर कौमी खवातीन कमीशन से भी रुजू होंगे। बाद में कविता ने डीजीपी से भी इसकी शिकायत की। మీరు బీసీ బిడ్డ కాబట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడితే చెల్లిపోతుందంటే కరెక్ట్ కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి మల్లన్న గారు, తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కువ కాలం పరుష పదజాలాన్ని సహించరు. మీరు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడితే చూసుకుంటే ఎవరు ఊరుకోరు. మీరు మాట్లాడిన దానికి డెఫినెట్గా ఆవేశం వచ్చి మా కార్యకర్తలు మా నాయకులు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అయితే మీరు కాల్పులు జరుపుతారా? సామాన్య ప్రజల మీద కాల్పులు జరిపేంత అంత క్రూరత్వం ఎందుకు? ఏంది ఇది? ఏం వైఖరి ఇది? ఏం వైపరీత్యం ఇది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా మీరు? అంటే ఒక ఆడబిడ్డను ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేసి ఇది తెలంగాణ పదజాలం గిట్లనే ఉంటుంది గట్లనే ఉంటుంది అని అంటే ఇది మీ టీవీ కాదు, మీరు మేకప్ వేసుకొని వేసే డ్రామా కాదు. ఇది రాజకీయము, ఇది ప్రజాస్వామ్యము. ఇందులో అనేక మంది ప్రజల యొక్క జీవితాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. మేము అనుకుంటే, ఆడబిడ్డలు అనుకుంటే కనీసం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలేరు. మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి మల్లన్న గారు. ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? నేను ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా అడుగుతున్నా. ఈ మల్లన్న గారు నిన్న మధ్యాహ్నం ఈ టైంకి ఈ మాట మాట్లాడితే ఇంతవరకు నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక సహచర ఎమ్మెల్సీని मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए ऑर्डिनेंस लाने पर बीसी कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, वज़ीर कुंडा सुरेखा के अलावा बीसी अरकान असम्बली और बीसी तंजीमों के सुदूर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि 100 साला बीसी का ख्वाब कांग्रेस हुकूमत ने पूरा किया है। माजी में दलित और पिछड़े तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे। वज़ीर आला ने कहा कि राहुल गांधी की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। तबकाती सर्वे के दौरान कई रुकावटें पैदा हुई हैं, उनको दूर करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना में लिए गए फैसले मुल्क भर में असरअंदाज होंगे। कांग्रेस पार्टी बीसी के मामले में पूरी तरह संजीदा है। बीजेपी इस मामले में संजीदा नहीं है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को 9वें शेड्यूल में शामिल करके कानूनी हैसियत दिलाएंगे। मरकज में बीजेपी हुकूमत है। मोदी की जगह राहुल गांधी होते तो हम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल कर लेते। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट मोदी से सवाल करें। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मज़ीद क्या करना है, इसको करने के लिए वो तैयार हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में कांग्रेस से सवाल करने का किसी को हक हासिल नहीं है। रियासत में हर जमात को बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फिक्र है। क्या बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मजालिस मुकामी इंतखाबात में हुकूमत कामयाब तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक बात साफ है कि पार्लियामेंट में बिल मंजूर होने तक बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात मिलना मुश्किल है। ये बात हर सियासी जमात जानती है। ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है। कांग्रेस पार्टी ने एक नया हरबा तलाश किया है। असेंबली में पास हुए बिल को गवर्नर की मंजूरी हासिल हो चुकी है और सदर जमहूरिया को बिल रवाना हो चुका है। इस तनाजुर में कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस लाकर यह तयक्कुन दिलाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस बीसी तबके के हक में है। अपोजिशन का मुतालबा था कि मजालिस मुकामी इंतखाबात मुनक्किद करने से पहले बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के बाद ही इंतखाबात मुनक्किद करें। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सियासी जमातों के मुतालबे को पूरा करते हुए मजालिस मुकामी इंतखाबात मुनक्किद करेगी। इसकी मुखालिफत कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। लेकिन मफाद आमा के तहत अगर कोई फ़र्द ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुकदमा पेश करता है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हुकूमत तेलंगाना ने पसमानदा तबकात को तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों और ओहदों पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने काबीना के हालिया इजलास में मंजूरी दी है। ये ऑर्डिनेंस इस सिलसिले में असम्बली के गुज़िश्ता बजट इजलास में मंजूरा बिल नंबर 3/2025 की जगह लेगा।
इस बिल की जरीदा गैर मामूली में मार्च 2025 को इशाअत अमल में आ चुकी है। ताहम इस बिल की मरकज से तौसीक ताहाल न मिलने पर ऑर्डिनेंस की इजराई का फैसला किया गया। इस ऑर्डिनेंस के जरिए पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। इससे कबल तहफ़्फ़ुज़ात की ये शरह 27% थी। इसके अलावा दर्ज फहरिस्त अक़वाम के लिए 15% और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। ऑर्डिनेंस की अमलावरी के लिए वही शराइत, ज़वाबित और तरीक़ेकार का इतलाक़ होगा जिसका असम्बली के मंजूरा बिल में हवाला दिया गया है। सरकारी खिदमात में रियासती हुकूमत के दफातर, रियासती मुक़न्नना, हुकूमत, मुकामी इदारे-जात, हुकूमत की मिल्कियत वाले या इसके तहत काम करने वाले कॉरपोरेशन, कंपनीज, इदारे-जात पर इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ होगा। तालीमी सतह पर रियासत के तमाम तालीमी इदारे-जात पर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात लागू रहेंगे। बीआरएस लीडर ई श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस लीडर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तहजीब भूल कर गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन सियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। गांधी भवन को गलीज़ भवन में तब्दील कर दिया गया है। केसीआर, केटीआर और हरीश राव के खिलाफ निचली सतह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और मुबाहिस का चैलेंज कर रहे हैं। बीआरएस मुबाहिस के लिए आगे आने पर फरार हो रहे हैं और उन्होंने रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वार्ड मेंबर के लिए भी कामयाब नहीं हो सकते, वो हरीश राव पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला से लेकर कांग्रेस कारकुन तक गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मौजू पर अबूर हासिल नहीं है तो हमारे कायदीन से सीखें। कांग्रेस कायदीन अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और सिर्फ मौजू पर बात करें। छोटे कांग्रेस कायदीन इस तरह की बात करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मशहूर फिल्म एक्टर कोटा श्रीनिवास चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने उनके देहांत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिल्मी सनत में उनकी कमी महसूस होगी, वो हमारे दरमियान में नहीं है। उन्होंने जो मुख्तलिफ किरदार अदा किए वो तेलुगु अवाम के दिलों में महफूज हैं। वज़ीर आला ने उनके अफराद ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी की। कोटा श्रीनिवास के आखिरी दीदार करने वालों में तेलुगु फिल्म सनत से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम 2 रोज़ा जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का पहला इजलास सदर इस्तक़बालिया कमेटी और रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। माह रबीउल अव्वल की 11 और 12 तारीख को दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होने वाले इस 2 रोज़ा जश्न को फ़क़ीदुल मिसाल बनाने का ऐलान किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 1500 साल की निस्बत से इसको बड़े पैमाने पर मनाने का फ़ैसला किया गया। इसके लिए एक ज़ैली मालियाती कमेटी तश्कील दी गई। इस्तक़बालिया कमेटी के सदर की हैसियत से जाफ़र हुसैन मेराज को 11वीं मरतबा इसकी ज़िम्मेदारी दी गई और मालियाती कमेटी के भी वो सरबराह बनाए गए हैं। इस ज़ैली कमेटी के दीगर अरकान में अरकान मुक़र्रना अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा एम.ए. हलीम, कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन, कॉरपोरेटर राशिद फराज, अतहर फारूकी, अनवर साहब, मेहदी पट्टनम, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, तैयब मलकपेट, कॉरपोरेटर नवाज, जाकर बाखरी, सुहैल कादरी, अजीज़ अतापुर, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शफ़ी, मिनहाज शामिल हैं। मोतमद इस्तक़बालिया कमेटी व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जश्न विलादत 1500 साल पर रोशनी डाली और इसकी अहमियत को बयान किया। कमेटी के इजलास में अरकान मुक़न्नना कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, रहमत बेग और दीगर अरकान कमेटी शरीक थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर चार मीनार हल्क़े असम्बली के सुल्तान शाही डिवीज़न में सीसी रोड के काम मुकम्मल हो चुके हैं, जो बख्शी बाजार से मस्जिद आलम साहब तक हैं और रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने इसका मुआयना किया है। उन्होंने बताया कि सुल्तान शाही में तरक्याती काम करीबुल ख़त्म हैं और माबाकी कामों को जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए एक मेगा जॉब मेला चारशंबा 16 जुलाई को किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल कडियनारम में मुनक्किद होगा। सदर मजलिस ने इस जॉब मेले के पोस्टर की इतवार को दारुस्सलाम में रस्म इजरा अंजाम दी।
इस जॉब मेले में 200 से जायद मुख्तलिफ कंपनीज, इदारे जात, IT, नॉन IT शोबेजात के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। जॉब मेले के दाई मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन हैं। मेले के कन्वीनर्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर रेड हिल्स मोहम्मद आरिफ और मजलिस के सरगर्म कारकुन मुकर्रम सिद्दीकी हैं। मेले में तकरीबन 15,000 मुतलाशियान रोजगार की शिरकत की तवक्का की जा रही है। नॉन मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन सतह तक मुलाजमतों के मौके दस्तयाब होंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन में 9 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली अंसारी रोड के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी करके VDCC रोड के कामों की मंजूरी हासिल की थी, जिसका इतवार के दिन काम का आगाज हुआ है। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया हबीब जैन आरिफ भी मौजूद थे। बाद में मिर्जा रहमत बेग रुकन कौंसिल ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, जना चैतन्या के अलावा इसके आसपास के इलाकों का अहाता किया और मुकामी अफराद से बात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और एक सुई का तयखुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। तारीखी चार मीनार का हर दिन हजारों अफराद मुशाहिदा करते हैं, जिनमें कई सयाह भी शामिल हैं। इसके अलावा ये एक बड़ा तफरीही मरकज है। हफ्तेवारी तातीलात के दौरान इनकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। ये इलाका सयाहों और बैरून रियासत या बैरून मुल्क से आने वालों के लिए इस शहर की शनाख्त, तहजीब और इसकी दीगर खुसूसियात को बयान करता है। लेकिन हुकूमत ने इस इलाके को जिस तरह नज़रअंदाज कर रखा है, इससे शहर को आलमी उफ़क़ पर बनाने का दावा करने वाली हुकूमत की पोल खुल जाती है। चार मीनार के मशरक़ी सिमत वाक़ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने बैरिकेडिंग लगाकर एक बड़े इलाके को घेर लिया है। इस बैरिकेडिंग पर कचरे के अंबार की वजह से यहाँ गुजरने वालों को ताफ़ुन का सामना करना पड़ रहा है। हफ्तेवारी तातील के सबब यहाँ आने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। सहूलतें तो कुछ नहीं, बल्कि कचरे के अंबार, इसके अलावा रास्तों की रुकावट बने हॉकर्स की वजह धक्कमपील की सूरत हाल देखी गई। अवाम के लिए हवाई ज़रूरिया से फारिग होने मुनासिब सहूलतें नहीं हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमे सियाहत, आसार कदीमा व दीगर महकमे जात ने शायद इस इलाके को अब नज़रअंदाज कर दिया है। सिर्फ पैदल चलने वालों को ही यहाँ आने जाने की इजाज़त है, लेकिन पुलिस अपने कुछ ख़ास लोगों को बाइक ले जाने की इजाज़त दे रही है। हैदराबाद का ब्रांड चार मीनार का यह मंजर इस शहर को आलमी उफ़क़ पर ले जा सकता है। सिकंदराबाद की उज्जैनी महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार के मौके पर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भेंट चढ़ाई और बोनम पेश करने वाली वजीर कोंडा सुरेखा थीं। वजीर आला के हमराह दर्शन देने वालों में वजीर पूनम प्रभाकर, P श्रीनिवास रेड्डी, A लक्ष्मण के अलावा अरकान असम्बली और दीगर भी शामिल थे। वजीर आला ने यहाँ खुसूसी पूजा भी की। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का आगाज हो चुका है। शालीबंडा इलाके में मंदिर की देवी को भेंट चढ़ाने के लिए 22 मनादिर से अवाम जुलूस की शक्ल में आकर भेंट चढ़ाई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से बंदोबस्त किया गया था। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर से कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 लाख रुपए मालियत के मेफ्टेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शंस और दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने मोहम्मद जुबैर और V विनय कुमार को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बगैर लाइसेंस और बगैर डॉक्टर की चिट्ठी के मस्कूरा इंजेक्शंस को खरीद कर ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे थे, जिससे नौजवान जो जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से उनकी बॉडी बिल्डिंग में नुमाया नशोनुमा पैदा होने का धोखा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन मीरठ रियासत उत्तर प्रदेश के रहने वाले कपिल गौतम से मस्कूरा इंजेक्शन खरीदते थे। टास्क फोर्स ने इंजेक्शंस के अलावा मुलजिमीन के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल्स, 2 मोबाइल फोन्स, नकद रकम तकरीबन 9,500 रुपए बरामद कर ली है।
साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने दबीरपुरा के साकिन शेख हफीजुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिसने 11 जुलाई की दोपहर के औकात में गंगानगर में वाकई मस्जिद वहीदुन्निसा बेगम के पास हुजूम को देखकर चोरी करने का इरादा करके एक मोटरसाइकिल की डिक्की को जाली कुंजी से खोलकर इसमें से पॉलीथीन में रखी नकद रकम लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में रैन बाजार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था, जिस पर टास्क फोर्स ने रैन बाजार पुलिस के इश्तराक से मुलजिम को माय मसरूका नकद रकम 5,97,800 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मनशियात मुखालिफ खुसूसी टीम ने रायदुर्गम पुलिस के हुदूद में वाक़ अबाना पब में हफ्ते की रात खुसूसी मुहिम चलाते हुए ड्रग्स के आदी या सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की इस तलाशी में साउंड सिस्टम का एक मैनेजर ड्रग्स का आदी पाया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टास्क फोर्स ने गच्चीबौली के इलाके में छापा मारकर नशीली ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक गांजा का कारोबार करने वाले संदीप साकिन महाराष्ट्र से गांजा खरीदकर इसे हैदराबाद में फरोख्त करता था। इस सिलसिले में मौसूला खबरों में बताया गया है कि 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसे 3,000 रुपए फी पैकेट में फरोख्त किया जाता है। फी पैकेट 50 ग्राम का होता है, जिसे जरूरतमंदों और को बेचा जाता है। इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने एक जोड़े को उनके छोटे बच्चे के साथ रोककर पूछा तो दोनों पॉजिटिव निकले, जिस पर टास्क फोर्स ने मां और बच्चे को जाने की इजाजत दे दी, जबकि शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में, चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। रुकन कौंसिल 3 मार मल्लन्ना के दफ्तर पर जागृति कारकुनों का हमला। कविता को कौंसिल रुकनियत से बर्खास्त करने का किया मुतालबा।
खवातीन की तौहीन, कविता ने कौंसिल के सदर नशीन से की मुलाकात, 3 मार मल्लन्ना के अल्फाज काबिल एतराज, रुकनियत से फौरन मुअत्तल करने का किया मुतालबा, डीजीपी से भी शिकायत। मोदी की जगह राहुल गांधी होते तो 48 घंटों में तहफ्फुजात हासिल कर लेते। तहफ्फुजात के मामले में अपोजिशन को सवाल करने का कोई हक नहीं, बीसी लीडर्स की वजीर आला से मुलाकात। पसमानदा तबकात को 42% तहफ्फुजात का ऑर्डिनेंस, जरीदा गैर मामूली में इशात, तालीम व रोजगार पर होगा इत्तलाक। और गैर कानूनी तौर से दवैया के फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, तकरीबन 5 लाख रुपए के इंजेक्शंस और दूसरी अशिया जब्त, टास्क फोर्स ईस्ट जोन की कार्रवाई। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।